Hello student, today we will start your next lecture. This is your lecture number 5th and today we will be covering your topics like social, cultural environment. In last lecture we have discussed how economical environment is useful for a society and for a marketer if they want to start their business at international level. In this lecture we will discuss how social, cultural environment affect the society and how it is important for a marketer to change its product or to change its marketing mix according to the social culture of a society in which they are working, in which they want to start their product. Like if I am talking about India, they are having a completely different culture as compared to the culture which is followed in USA. If I'm comparing the culture of Japan with India, we are having a complete different social culture. We are having a complete different norms. So in this lectures we will be discussing how social culture affect the society and a marketer in their marketing strategy. First of all, let me discuss that what are the topics we have covered and what are the topics we will be covering in your external business environment. So far we have covered your economical environment कि economic environment क्या होता है, किस तरीके से आपको economic environment affect करता है, like कितनी आपकी के पास पैसा है, आपका पैसा किस तरीके से आपको affect करता है. Next, in today lecture we will be covering your social culture environment, how social culture environment affect a marketer and its marketing mix. Next come is your global environment, technological environment and political environment which we will be covering in next lectures. First is your social environment. Social cultural environment, it is a mix of two words. First is your social and another is your culture. Culture means the values and the norms which a particular group or a particular individual followed throughout its generation. social Social environment, it is concerned with the society as a whole. वो पूरी सोसाइटी से कंसर्न है. लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो अगर वो खाली इंडिया के कल्चर से बात कर रही हूँ दैन इट विल बी कवर्ड इन योर सोशल एनवायरनमेंट. इट कवर्स लाइक हेल्थ, मीडिया, एजुकेशन, माइनॉरिटीज़, वुमेन, organized labor, legal system and demographics. Demographic means the culture, the group, like कि पूरा का सेट जैसे इंडिया का है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अबव यूथ होता है. जैसे इंडिया का मेजर पार्ट है इज़ यूथ. चाइना का है क्या, मेजर पार्ट क्या है, उनकी ओल्ड जनरेशन है. सो डेमोग्राफिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट आर द इंडिविजुअल, व्हाट आर द एज सेट एंड द beliefs which individuals are having in their personalities. So biggest challenge to a firm is to changing its goal according to the social environment. So in cultural environment we will be studying like social customs. Customs क्या होते हैं? Customs are the beliefs and the ideas and the ritual and the practice which an individual follow throughout his lifestyle. And वो कहाँ से मिलता है उनको? अपनी फैमिली से मिलता है या उनको अपनी फ्रेंड से मिलता है, और या फिर जिस ग्रुप में वो रहते हैं वो वहाँ से वो कस्टम्स अपने अंदर ग्रैब्स करते हैं. नेक्स्ट कम्स टू योर लाइफ स्टाइल पैटर्न. उनका लाइफ स्टाइल का क्या पैटर्न है, फैमिली स्ट्रक्चर उनका किस तरीके से, रोल एंड पोजिशन ऑफ वुमेन, मेन, चिल्ड्रन एंड एज एंड फैमिली. So culture is different. Socially is when we are talking about a whole society, and cultural means a set of beliefs and ideas which are individual gathered from its family or rituals which they are following throughout their life. डेमोग्राफिक मीन्स ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, कि क्या है वहाँ पे लोगों की कितनी ग्रोथ है पॉपुलेशन में, कि कितनी जल्दी जल्दी वहाँ पे एज लोग बढ़ रहे हैं, उनकी क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ है, कितना ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है. लाइक इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या उनका एज कंपोजिशन है, कि लाइक इन यूथ है. हमारा इंडिया की बात करते हैं तो मेजर पोर्शन इज़ कवर्ड बाय यूथ, हमारा यूथ ज़्यादा सबसे ज़्यादा है. अगर हम चाइना की बात करते हैं सो दे आर हैविंग द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन, मतलब उनके जो पॉपुलेशन का टोटल है उसमें बूढ़े लोग ज़्यादा हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उनकी, मतलब वो कितने साल जिएंगे. लाइक इंडिया में कि नॉर्मल एज है 70-65,
तो क्या कितना उनका रेशो है, सेक्स रेशो क्या है वहाँ पे, क्या कितनी फीमेल्स है कितने मेल्स हैं, फर्टिलिटी रेट क्या है, कितनी जल्दी वहाँ पे बर्थ हो रहे हैं, इंटरस्टेट माइग्रेशन कितना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कितना माइग्रेट कर रहे हैं वो। नेक्स्ट कम्स टू योर, अब हमारा क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, लाइक अगर मैं बैचलरहुड, मेरी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बैचलर्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, सो उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यंग पीपल होती है, नॉट लिविंग एट होम, ऑब्वियसली दे आर लिविंग एट देयर पीजीज में रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं। सो उनका बाइंग पैटर्न क्या होगा, अगर एक मैं मार्केटर हूँ, मेरा टारगेट मार्केट बैचलरहुड है, सो मैं आई विल क्रिएट लाइक फैशनेबल क्लोथ्स बनाऊंगी मैं उनके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ें बनाऊंगी जिससे कि उनका नीड सेटिस्फाई हो। सो इफ़ आई एम अ मार्केटर, मुझे पता है उस डेमोग्राफिक में क्या है कि बहुत ज़्यादा बैचलरहुड्स हैं, वहाँ पे बहुत यंग जनरेशन है जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। सो उनका क्या पैटर्न होगा, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सो दे विल क्रिएट लाइक फैशंस पे, अपने मोबाइल्स पे, ये चीज़ पे ज़्यादा स्पेंड करेंगे। न्यूली मैरिड कपल्स हैं, अगर मेरी जनरेशन में, अगर मेरा टारगेट मार्केट न्यूली मैरिड है, सो यंग पीपल होंगे विदाउट चिल्ड्रन, उनके पास अभी बच्चा नहीं होगा, तो वो किस पे करेंगे, अपना फैशनेबल चीज़ पे करेंगे, लेजर्स पे, मतलब रिलैक्स करने में, अपने आप को फ़ायदा, मतलब जिससे कि वो दे विल फील कंफर्टेबल, उसमें करेंगे, आर्टिकल फर्निशिंग में, यूटेंसिल्स में, इन सब में खर्च करेंगे। फुल नेक्स्ट स्टेज वन होता है बिगनिंग ऑफ, जब उनके एक बच्चा हो जाता है तो चाइल्ड ग्रोथ पे करेंगे, फूड पे करेंगे, मेडिसिन पे करेंगे। नेक्स्ट कम्स टू योर फुल नेक्स्ट स्टेज, जब उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, एटलीस्ट 6 ईयर का ओल्ड का बच्चा हो जाता है, उनका 6 साल का बच्चा हो जाता है, तो चाइल्ड की टॉय पे, साइकिल, उनके बाईसाइकिलर एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे। ऐसे ही करते हैं, अगर हमारा 3rd स्टेज पे हो जाएगा तो हमारा जब वो टीन में आ जाएगा बच्चा, उसकी एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे पेरेंट्स। उसके बाद ओल्ड, अगर हमारे मैरिड कपल्स हैं, उनके वो डिपेंडेंट है, एनी डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिविंग विद देम, तो वो जिस पे डिपेंडेंट है उस पे खर्च करेंगे। तो दीज आर द डेमोग्राफिक्स एंड द पार्ट्स की किस तरीके से हमारे एक मार्केटर को पूरा का पूरा अपना डेमोग्राफिक समझना है, टारगेट मार्केट समझना है उसको। नेक्स्ट कम्स टू योर सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट अब क्या होता है एज अ होल, अगर हम दोनों के बारे में बात करते हैं, अ सेट ऑफ कस्टम्स हो गया, बिलीव्स, बिहेवियर, प्रैक्टिस दैट एग्जिस्ट विद इन अ पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन में कंसिस्ट होती है, कस्टम्स जो मैंने अपनी फैमिली से लिए हुए हैं, बिलीव जो मैंने खुद एक डेवलप करा है, ये मेरा बिलीव है, बिहेवियर जैसा मेरा है, प्रैक्टिस जैसे है वहाँ की। Companies often include an examination of social cultural environment before entering their target market। अगर मुझे एक कंपनी हूँ, मैं किसी नए मार्केट में एंटर कर रही हूँ, सो मैं एक सोशल कल्चर को पूरा अच्छे से पहले उसको पढ़ूंगी कि वहाँ का सोशल कल्चर क्या है, क्या वहाँ के लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे इंडिया में जाके कुछ ऐसे कल्चरल चीज़ करती हूँ जो उनके बिलीफ के अगेंस्ट है, या कि कुछ भगवान के अगेंस्ट चीज़ बोलती हूँ कि ये भगवान के अगेंस्ट है, या फिर कुछ ये बोलती हूँ किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली दे विल अफेक्ट माई प्रोडक्ट, दे विल नॉट बाय, बिकॉज इन इंडिया में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को माना जाता है। ठीक है, सो इफ़ अ मार्केटर अगर हमारे एंटर कर रहा है, ही नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट प्रॉपरली। So it includes democratic factors, attitude of people, social responsibility, religion, taste and preference, education, your family, natural and technological factor, and income and lifestyle pattern also। सो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट जो अडॉप्ट करा गया है इंडिया के थ्रू, लाइक एग्जांपल लेते हैं लैंग्वेज। फर्स्ट इज योर लैंग्वेज। समटाइम अ फर्म फेस अ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, लाइक फोर्ड ने फेस करी थी, उन्होंने अपनी ट्रक का नाम फेरिया रखा था, फीरिया, विच मीन्स अगली ओल्ड वुमेन इन स्पेनिश। अगर वो स्पेनिश में जाके अब अपना ट्रक बेचेगा तो उसका मतलब हो जाएगा जो वो ट्रक का नाम है कि ये तो अगली वुमेन है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी ऐसी ही हमारे अफेक्ट करती हैं। अगर मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मेरे कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस से मैच नहीं करता, ऑब्वियसली दे विल नॉट बाय माय प्रोडक्ट। से ड्रेसिंग सेल्स है इंडिया में, लाइक यूजुअली अभी वेस्टर्न कल्चर आया, बिफोर दैट दे आर में लोग प्रेफर करते थे सूट पहनना, गर्ल्स
मेंस होते थे वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनना प्रेफर करते, तो दे हैव टू मार्केटर को उसकी चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। रिलीजियस एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा हमारा होता है। अगर मैं पाकिस्तान में जाके आपके या कोई भी जो सऊदी कंट्रीज़ हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके मैं अगर शॉर्ट कपड़े ज़्यादा अपने ट्रेंड करूँगी, ऑब्वियसली दे विल नॉट बाय माई प्रोडक्ट, बिकॉज यूजुअली दे प्रेफर टू वेयर, लाइक वहाँ की वुमेंस प्रेफर करती हैं सूट्स, ये सब चीज़ें वेयर करना। तो ये हमारे रिलीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है किस कंट्री में मैं एंटर कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपका, लास्ट मैकडी का हमने पहले भी लिया था। मैकडी जब हमारा इंडिया में आया तो उन्होंने क्या अपना करा था, हैमबर्गर और बीफ बर्गर को लॉन्च करा था, बट इट इज़ अगेंस्ट अ कल्चर ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया में गाय की पूजा की जाती है और पिग के मीट को नहीं किया जाता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो हमारी पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है। So they have to change their product according to the social culture and the cultural belief of our India if they want to establish. So they have changed their product, and that's why today this is the biggest selling product in India. Thank you.